Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Students, today's topic is the poet and the jester. Let's start. Do you remember reading about Vadim, the boy from Yantaya? He grew up and he did became a famous poet. क्या आपको वैडिम के बारे में याद है, जो यंताया का लड़का है? खैर वो बड़ा हुआ और वो एक मशहूर शायर बन गया. His name spread far and wide and his friends often told him to go to the court of the Vladimir and to seek a job there. The king would be able to pay him well and look after him because that is exactly that king used to do. उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और उसके दोस्तों ने अक्सर उसे बादशाह व्लादिमीर की अदालत में जाने और वहाँ नौकरी की तलाश करने के लिए कहा. बादशाह उसे अच्छी तरह से मुआवजा दे सकता था और उसकी देखभाल कर सकता था, क्योंकि यही बादशाह किया करता था. In this court there were many wise and skillful people and they were all looked after by the king. उसके दरबार में बहुत से अक्लमंद और हुनरमंद लोग थे, उन सब की देखभाल बादशाह करता था. Vadim or Vadim of Yantaya, as he was known, thought that his was a good idea. यंताया का वैडिम अब ख़यालों में जाना जाता है जैसे एक अच्छा आइडिया था. However, he did not know who he could get into the court of the king. कैसे भी करके वो बादशाह के दरबार में जाना जाता था. Then one day a man called Mikhailovich, who was very close to the king, come to a place near यंताया. फिर एक रोज़ मिखाइलोविच नामी शख्स जो बादशाह के बहुत करीब था, यंताया के करीब एक जगह आया. Vadim's friends told him about his man. Go and see him, they urged. वैडिम के दोस्तों ने उसे उस शख्स के बारे में बताया, जाओ और उसे देखो. He will surely be of some help. Vadim hurried to the nearby village and found Mikhailovich. वो यकीनन कुछ मददगार साबित होगा. वैडिम जल्दी से करीबी गांव गया और उसे मिखाइलोविच मिला. He begged for an audience with his powerful men, and when Mikhailovich heard it was the famous poet, he readily agreed to see Vadim of Yantaya. उसने उस ताकतवर शख्स के साथ सामाईन यानी सुनने वालों के लिए मिन्नत समाजत की और जब मिखाइलोविच ने सुना कि ये मशहूर शायर है, तो उसने आसानी से यंताया के वैडिम को देखने पर रजामंद हुआ. Vadim came before Mikhailovich and was careful to be polite. वैडिम मिखाइलोविच से पहले आया और अपना मिजाज नरम रखने में मोहतात रहा. He did not want to upset the man with his jokes or sharp comments. वो अपने लतीफ़ों और तेज़ तरार बातों से उस शख्स को परेशान नहीं करना चाहता था. Instead, he read out some of these poems. उसके बजाय उसने अपनी कुछ नज़में पढ़ी. Mikhailovich was most impressed. मिखाइलोविच सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ. What a fine way you have with words, young man, he said. उसने कहा, नौजवान, अल्फाज के साथ आपका इतना उम्दा तरीका है. You have written some fine poems. आपने कुछ उम्दा नज़में लिखी हैं. The king will like them immensely, so you must come along and read them to him.
बादशाह उनको बेहद पसंद करेगा, लिहाजा आपको लाजमी तौर पर साथ आकर उसे पढ़ना चाहिए। Vadim was excited by this opportunity and he thanked Mikhalovich most gratefully. वैदिम इस मौके पर बहुत पुरजोश था और उसने मिखालोविच का इंतहाई शुक्रगुजाराना तौर पर शुक्रिया अदा किया। Yes, indeed, continued Mikhalovich and then added rather grandly and much to Vadim's disappointment, I shall try and remember to send you for one of these days. हाँ, जारी रखो। इसके बजाय यानी वैदिम के बजाय दूसरों को शामिल किया गया जो वैदिम की मायूसी के लिए काफ़ी था। मैं तुम्हें इन दिनों में से किसी एक दिन बुलवा लूँगा। Vadim returned to Yantaya and hoped that Mikhalovich would remember to call him to the court of the king one day, but the days rolled on and the week. वैदिम यंताया के पास वापस आया और उम्मीद जाहिर की कि मिखालोविच उसे एक दिन बादशाह के दरबार में बुलाना याद रखेगा, लेकिन दिन हफ्तों में चलते चले गए, यानी कि बहुत से दिन गुजर गए। Still there was no news from Mikhalovich. अभी तक मिखालोविच से कोई खबर नहीं मिली। Vadim became impatient with waiting. इंतज़ार के साथ वैदिम बेचैन हो गया। One fine day he packed up poems and all his personal belongings and along with his family set off for Nikogad, the capital of the kingdom. एक ठीक दिन उसने अपनी नज़मों और अपने तमाम ज़ाती सामान को पैक किया और अपने अहले खाना के साथ ही बादशाह के दारुल हुकूमत निकोगाड के लिए रवाना हुआ। The very next day after he arrived in Nikogad, Vadim went to the Mikhalovich's grand house. अगले ही दिन जब वो निकोगाड पहुंचा तो वैदिम मिखालोविच के अजीम और आलीशान घर गया। The house was surrounded by gardens and a huge wall. There were guards at the gate. मकान बागात और एक बहुत बड़ी दीवार से घिरा हुआ था। गेट पर गार्ड्स मौजूद थे। But the walls and the guards did not stop Vadim. लेकिन ये दीवारें और गार्ड्स वैडिम को रोक नहीं सके। He marched straight past the guards into the grounds of Mikhalovich's house. उसने मुहाफ़िज़ों के पीछे सीधे मिखालोविच के मकान के ग्राउंड की तरफ बढ़ गया। When the guards tried to stop him, he brushed them aside. जब गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसकी बात को रद्द कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके चैप्टर द पोइट एंड द जेस्टर का फर्स्ट स्पेल हुआ है। बाकी की वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। आगे आपको होमवर्क टास्क दे दिया गया है। सबसे पहले है डिफ़िकल्ट वर्ड्स। Comments: immensely, disappointment, impressed, belongings, kingdom, entertain, embarrassed, permission, amazement। यहाँ आपको वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। तमाम वर्ड्स के मीनिंग आप उसके सामने लिखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अल सहर सेकेंडरी स्कूल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।